कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के, केविन पनियप्पा के, रामलिंगा रेड्डी के, चंद्रा रेड्डी के। कांग्रेस वर्किंग कमेटी मुनियप्पा साहब, सीनियर कर्नाटका लीडर, फॉर्मर मिनिस्टर एंड MLA 7 times, Shri Ramlinga Reddy ji, and now the working president of the KPCC, my friend who has come with me, Mr. Shankar, who has come all the way from Bangalore with me, Youth Congress, NSUI, Mahila Congress, President, workers, ladies and gentlemen, and all the departments and cells, I can see everybody is represented very well. शुरू में आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, should I speak in English or Hindi? हिंदी, हिंदी कर देगा। वो यूपी टाइप हिंदी नहीं बोलेगा, बॉम्बे टाइप हिंदी बोलेगा। मुंबई का जो फिल्मों का हिंदी है ना, उसमें इंग्लिश नहीं चलेगा, ठीक है ना? कल पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के न केवल फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इंडिया के ही नहीं, पूरी दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर का कल 132nd बर्थ एनिवर्सरी था। आप में से कितने यूथ हैं? How many young people are there who are on the Twitter? Hands up. Anybody on the Twitter? Okay. Hands down. कल मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की एनिवर्सरी पे मैंने ट्वीट करा। मैंने क्या लिखा उसमें? मैंने कहा कि महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये कहा था। क्या कहा था? He is pure as a crystal. He is truthful beyond suspicion. The nation is safe in his hands. So we pay our homage to Pandit Jawaharlal Nehru, India's greatest and noblest Prime Minister. अब पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, क्योंकि मुनियप्पा जी, you spoke quite a lot of Pandit Jawaharlal Nehru, whatever I could understand. We are also celebrating the 75 years of freedom. और चंद्रप्पा रेड्डी जी, if you want me to come again, you please organize as part of 75 years a lecture on Pandit Jawaharlal Nehru, and I am ready to come because I have delivered I don't know how many lectures. Like I have lost the count of your assembly seats. How many times I have lost count? How many times I have spoken on Pandit Jawaharlal Nehru? So I am ready to come, but only after 16th of December. 16 December तक मेरा सर जो है ना, यहाँ तक पानी आ गया है और मेरा फाइनल फंक्शन जो है 16 दिसंबर को है। अब मेरा जो आने का मकसद है, my aim of coming is to tell you briefly the history of Bangladesh liberation struggle. Ramlinga Reddy ji, आपने मेरा ख्याल you spoke something about that. उससे my burden has become much less. But briefly, I would just want to explain to you how it all started. Now we should know, especially the women, but not only women. ये सबको पता होना चाहिए because most of us are Congress workers, active Congress workers. Some other public may be there, but most of us are active Congress workers, isn't it? That is all. तो हमें पता होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू कब बने, शास्त्री जी का कब डेथ हुआ, इंदिरा गांधी कब प्रधानमंत्री बनी, राजीव गांधी कब बने। तो I take you 50 years back on 16th March 1971,
Shrimati Indira Gandhi became the Prime Minister of the country for the third time. Earlier she had become Prime Minister in January 1966. उसके बाद जनरल इलेक्शन आ गया 1967 में. Again she became the Prime Minister. In 66, Morarji Desai stood against her and lost. You know, he lost the election of the Congress Parliamentary Party and Mrs. Gandhi became the Prime Minister. लेकिन 67 में मोरारजी देसाई ने कहा I will not stand against you. लेकिन इंदिरा जी ने क्योंकि मोरारजी देसाई को क्या बना दिया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर. तो 67 में वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए मोरारजी देसाई. तो 16 March 1971 Indira ji became the Prime Minister for the third time. And within 8 days, 8 दिन के बनते ही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में एक बहुत भारी संकट जो है वो खड़ा हो गया. क्या हुआ कि 25 तारीख की रात को 25 March 71 the Pakistan Army entered Dhaka University. वो तो उस टाइम पाकिस्तान का एक पार्ट था ना, तभी मैं पाकिस्तान बोल रहा हूँ. Dhaka University में they entered on the night of 25 March 1971 and they killed all the students, all the teachers, all the staff, all their families. उनको सबको कत्लेआम कर दिया. क्यों करा? क्या कारण था? Why did they do it? हुआ ये कि 1969 तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे जो सबसे लंबा समय तक रहे जनरल अयूब खान. He was a military dictator and he managed to rule Pakistan for 9 years. And I just want to tell you that that 9-year period of Pakistan was perhaps the best period in their 70 years of history. But what happened was, by 1969, the people had got fed up of martial rule and they put a lot of pressure on Ayub Khan to step down and restore democracy. तो अयूब खान ने अपने आर्मी चीफ जनरल याया खान को बुलाया और कहा, जनरल, I have to step down because people are demanding that democracy is restored. जनरल याया खान ने कहा, साहब आप खुद ही मार्शल लॉ डिक्टेटर और आप मुझे बना रहे हैं, डेमोक्रेसी कैसे रिस्टोर होगा? तो अयूब खान सेड, नो जनरल, आपको जो है कुछ महीने के अंदर आपने इलेक्शन करवाने हैं पाकिस्तान में. अयूब खान स्टेप डाउन, जनरल याया खान took over as the president and he announced the election because that was the public demand. हुआ क्या कि बाद में पाकिस्तान में बहुत ईस्ट पाकिस्तान में बहुत भारी फ्लड आ गया और नवंबर के महीने में ऐसा साइक्लोन आया कि 5 लाख people of Bangladesh died in that cyclone and 4 lakh houses were destroyed. So the election had to be postponed, but finally the elections in Pakistan, in both West Pakistan and East Pakistan, they were finally held in December 1970. अब उसका रिजल्ट क्या हुआ? That is very interesting. You must listen very carefully. ईस्ट पाकिस्तान के जो सबसे बड़े नेता थे उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान. शेख मुजीबुर रहमान की जो अवामी लीग पार्टी थी, उनको इलेक्शन में 162 सीट्स में से 160 सीट्स मिली. वो ईस्ट पाकिस्तान में 162 सीट्स और वेस्ट पाकिस्तान में जहाँ जुल्फिकार भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी पीपीपी, उनको केवल 86 सीट्स आउट ऑफ 142 सीट्स. तो जो मैंडेट था, जो जनता का मैंडेट था, दैट वाज इन फेवर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान. पर जब ऐसा हुआ कि रिजल्ट आया, मैं 2 मिनट के लिए रुक जाता हूँ, लेकिन कहता हूँ प्लीज कम, इतना हैंड, इतना आइए,
mandate of the people of Pakistan was in favor of Sheikh Mujibur Rahman. Okay. तो जब शेख मुजीबुर रहमान को मैंडेट मिल गया तो जनरल याह्या खान को कहना पड़ा कि द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान विल बी शेख मुजीबुर रहमान, बिकॉज़ दैट वाज द रिजल्ट। लेकिन भुट्टो ने जब ये पढ़ा न्यूज़पेपर में दैट शेख मुजीबुर रहमान इज गोइंग टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ही रश्ड टू जनरल याह्या खान, he met him in the president's house and he said, nothing doing, general, the people of West Pakistan will never accept anybody from East Pakistan to become the prime minister, because that was their history since 1947. 1947 जब पाकिस्तान आजाद हुआ, भारत भी आजाद हुआ, उनकी आजादी एक दिन पहले वो मनाते हैं, तब से लेके 1970 तक जो वेस्ट पाकिस्तान के लोग थे वो ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को दबा के रखते थे। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती थी, चाहे वो सिविल ब्यूरोक्रेसी सिविल में हो, आर्मी में हो, वो सारा ज्यादा से ज्यादा जो है वो वेस्ट पाकिस्तान को हिस्सा जाता था और ईस्ट पाकिस्तान को बहुत कम मिलता था। जो फॉरेन एड आती थी वो भी 70% वेस्ट पाकिस्तान में चली जाती थी, 30% ईस्ट पाकिस्तान में आती थी। तो इसी तरह से, और वो ये भी कोशिश करते थे कि बंगाली लोगों के ऊपर उर्दू भाषा जो है, they wanted to impose Urdu also on the people of Bengal who are Bengali speaking. How can you impose Urdu on them? तो इससे जो है बांग्लादेश के जो लोग थे उनमें वैसे ही बहुत नाराजगी थी। और जब भुट्टो ने कहा याह्या खान को, भाई ये तो हम मंजूर नहीं करेंगे, तो याह्या खान ने भुट्टो को समझाने की कोशिश करी, अरे बेवकूफ मत बनो, डोंट बी फूलिश, ही हैज वन द मैंडेट, यू डू वन थिंग, यू गो टू ढाका, यू गो एंड मीट हिम, टॉक टू हिम, मे बी ही माइट एग्री फॉर अ कोalition गवर्नमेंट और समथिंग लाइक दैट। तो भुट्टो गोज टू ढाका, वहां पे वो शेख मुजीबुर रहमान से मिलते हैं, कहते हैं देखिए आपने पूर्वी पाकिस्तान में आपका मैंडेट है, मेरा वेस्ट पाकिस्तान में मैंडेट है, तो क्यों ने हम जो है कोalition गवर्नमेंट बना ले। तो शेख मुजीबुर ने कहा, लुक आई हैव गॉट ए क्लियर मैंडेट, आई एम इन क्लियर मेजॉरिटी, हाउ कैन यू बी देयर। और अगर मैं मान भी जाता हूँ, योर रिप्रेजेंटेशन विल बी वेरी लो। भुट्टो ने कहा, आप क्या रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, कोalition गवर्नमेंट तब बनेगी इफ आई एम मेड द प्राइम मिनिस्टर, because nobody from East Pakistan can become the prime minister. You become the deputy prime minister, but prime minister I Zulfikar Ali Bhutto will become. So Sheikh Mujibur Rahman को मुलाकात में he said, so nothing doing. So the talks broke down. Yahya Khan then went himself to Dhaka and he tried to convince Sheikh Mujibur Rahman, और ढाका में जनरल याह्या खान ने अनाउंस कर दिया कि फरवरी 1971 में नेशनल असेंबली पाकिस्तान की वहां मिलेगी और दे विल ड्राफ्ट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पाकिस्तान इन फरवरी 1971। ये कह के वो चले गए और जब वो वापस पहुंचे तो भुट्टो ने फिर ऑब्जेक्शन लगाया कि आप ये क्या करके आ गए हैं, ये तो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो याह्या खान को इतना प्रेशर डाला भुट्टो ने कि याह्या खान ने जो असेंबली की डेट दी थी मिडल ऑफ फरवरी में, उसको एंड ऑफ फरवरी में पोस्टपोन कर दिया। जब ऐसा करा तो शेख मुजीबुर रहमान ने वहां पे पीपल्स मूवमेंट शुरू कर दी अगेंस्ट दी मिलिट्री रूल, और उन्होंने ये डिमांड किया, उन्होंने आजादी डिमांड नहीं करी। In February, he did not want independence. He said, we will remain within Pakistan, but we want provincial autonomy and we want the mandate of the people respected. ये उसकी मांग थी। उसके बाद भुट्टो साहब फिर गए वहाँ पे उनको मिलने के लिए। He repeated the same thing that only I become the prime minister. और 24 मार्च 1971 को भुट्टो की आखिरी मुलाकात होती है शेख मुजीबुर रहमान के साथ, और उनके बाद
आखिरी मुलाकात होती है जनरल याह्या खान की शेख मुजीबुर रहमान के साथ। बातचीत में कुछ निकलता नहीं है हल। 25 मार्च 71 अर्ली मॉर्निंग मिस्टर भुट्टो लीव फॉर रावलपिंडी। जनरल याह्या खान ऑल्सो आफ्टर 1 hour ही ऑल्सो लीव फॉर रावलपिंडी। लेकिन जाने से पहले जनरल याह्या खान वहां के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ईस्ट पाकिस्तान के जनरल टिक्का खान, जिनका नाम बहुत फेमस था, बुचर ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का बुचर उसको बोलते थे, उनको बुलाया याह्या खान ने। और याह्या खान ने कहा कि आज रात को जनरल, आज रात को इन बंगालियों को सबक सिखा देना, 30 पैमाने से। और फिर वही हुआ, कत्लेआम जो है शुरू हो गया। रात को शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके रावलपिंडी या इस्लामाबाद ले गए। लेकिन जाने से पहले शेख मुजीबुर रहमान ने ढाका की जमीन से ही ये ऐलान कर दिया कि आज से बांग्लादेश जो है एक चौथी एक इंडिपेंडेंट मुल्क बन गया है। ये 26 मार्च 1971 जो है वो बांग्लादेश के लोग, हमारा कौन सा है आजादी का दिन? 15 अगस्त है ना। पाकिस्तान का क्या है? 14 अगस्त। और बांग्लादेश का क्या बन गया जो शेख मुजीबुर रहमान ने बना दिया? 26 मार्च 1971। हालांकि वो आज़ादी जो है उनको मिली जाके 16 दिसंबर में, लेकिन उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया, उनको कैद कर दिया, ले गए। और ये जो कत्लेआम ढाका यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था वो फिर फैलता ही गया, फैलता ही गया, फैलता ही गया, पूरे बांग्लादेश में फैल गया। लोगों ने भागना शुरू कर दिया। आप जो हमारे नौजवान साथी, आपने मैप देखा है, हैव यू सीन द मैप ऑफ बांग्लादेश? Bangladesh is surrounded from all 4 sides by Indian states. एक तरफ पश्चिम बंगाल है जहाँ पे ममता बनर्जी बैठी है ना, चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल में। उनके उत्तर में त्रिपुरा है, उनके उत्तर में असम है, उत्तर पूर्व में मेघालय है। तो हर दिशा में जो है वहाँ के लोग भागने शुरू हो गए। 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। जुलाई के महीने तक वहां से 40 लाख लोग जो है भारतवर्ष में शरणार्थी थे, रिफ्यूजीज इन इंडिया।